ہم اور آپ ہیں جو اپنے بیٹوں کے نام پر جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام پر ہیرو ہانڈا اور فور ویلر ٹو ویلر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کل محمد رسول اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ اے آقا، اے نبی، ہم تمہارے امتی ہیں اور تمہارے امتی ہونے کے باوجود اے آقا ہم اپنے بیٹوں کے نام پر جہیز کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے؟ کیا محمد رسول اللہ کو شکل دکھاؤ گیا؟ امتی محمد رسول اللہ کے ہیں اور ڈاکہ کس نے ڈال دیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک شاعر، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، میر تک میر، بات ذہن میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ میر تک میر ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور اس کی لڑکی کے رشتے آیا کرتے تھے، لیکن اتنا اس کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا۔ لسٹ آ جاتی لڑکیوں کے والوں کے گھر سے پوری، جہیز کے اندر یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ غریب باپ تھا، شاعر تھا، لیکن اتنا جہیز نہیں دے سکتا۔ اب مجبوری کی حالت میں ایک اور رشتہ آتا ہے، اس نے اپنا مکان تک گروی رکھ دیا، اپنی پان کی ایک دکان تھی اس کو بھی بیچ ڈالتا ہے۔ لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے بینک سے لون لیا ہے، اکیلی لڑکی تھی، کوئی اولاد اور نہیں تھی۔ بیٹی دل کے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وقال تعالى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما بعد معزز حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ جیسا کہ یہ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے اس قرآن کریم کی آیت کو اتارا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگ اے امت محمدیہ اپنے نبی ہمارے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہو۔ آج محبت کا دعویٰ تو ہم اپنی زبان سے کرتے ہی کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ دنیا کا ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کافرین مکہ، عرب کے کافر بھی آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی ذات رسالت سے ان کو بہت محبت تھی۔ یہ الگ چیز ہے وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن کافرین مکہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔
یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جب کوئی کافر کہیں جاتا تھا تو اپنی امانتیں، اپنے گھر کا ساز و سامان جناب محمد رسول اللہ کے سپرد کر کے جاتا۔ کافرین مکہ آپ کو امین کہتے، آپ کو صادق کہتے، تو محبت جو ہے کافرین مکہ کو بھی تھی، اپنی امانتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کیا کرتے تھے بطور امانت کی۔ آپ کو سچا اور امین اور صادق بھی کہا کرتے تھے، لیکن آپ کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہم سے یہ کہا کہ محبت کرو تو کیسے ہونی چاہیے، اس محبت کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے فرمایا کس کے مقابلہ میں کس کی قربانی دینے کو پڑے اور آپ اس کو نہ دیں۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اے ایمان والو تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، عزیز و اقربا سے زیادہ، اگر تم کو جناب محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہے تم مومن کامل نہیں بن سکتے ہو۔ یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی سے، جناب محمد رسول اللہ سے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے تمام آبا و اجداد سے زیادہ اگر محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر باپ کے مقابل میں جناب محمد رسول اللہ کی قربانی دینا پڑے تو ہمیں دینا پڑے گی، اگر ماں سامنے آ جائے تو ماں کی بھی قربانی دینا پڑے گی۔ یاد رکھیے یہ ہمارا محبت کا تقاضا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی محبت نبی کرم سے دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ بے پناہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں تو یہاں تک لکھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن وہ کافر تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ان کی بیوی نے ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، برا بھلا کہا، اور وہ ان کی بیوی حمل سے تھی۔ صحابی رسول کچھ دیکھتے نہیں، خنجر اٹھاتے اس کے پیٹ میں ٹھوک دیتے ہیں، بچہ باہر گرتا ہے اور کچھ تڑپنے کے بعد اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تھی صحابہ کے نبی کرم سے محبت کہ ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کے حکم کی راستہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ نے کہا کہ جو آپ کو گالی کرے اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں اٹھا کر دیکھنا چاہیے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت رسول، ہم کو محمد رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اللہ سے نبی سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ، اپنا جو تجارت جو بزنس چل رہا ہے اس سے زیادہ، کھیتی باڑی سے زیادہ اگر کسی کی قربانی دینا پڑے تو ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گی۔ اور یہی صحابہ کرام کی محبت کا عالم تھا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور بستی کی طرف ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کا مکان بن رہا ہے، اور آپ نے ایک دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ مکان تو بہت اچھا بن رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک انصاری نوجوان ہے، ایک انصاری صحابی ہے، اور وہ اپنا مکان بنا رہے ہیں، قبادار خود سے بنا رہے ہیں، اس کی شکل مسجد کی طرح دے دیتے ہیں، اور اس طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ
जाते हैं और आपने देखा और फरमाया माशाअल्लाह मकान तो बहुत अच्छा बना हुआ है, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए, लेकिन इस मकान के ऊपर, इस मकान पर जो मस्जिद की तरह इन्होंने गुंबद बना दिया, ये नहीं होना चाहिए। लोग मस्जिद समझकर इस घर के अंदर घुसा करेंगे और इस घर की बेपर्दगी हुआ करेगी। इतना कहकर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं। देखिए मोहब्बत क्या होती है। अल्लाह के नबी ये कहकर चले जाते हैं। दूसरे वक्त में जब वो सहाबी जो अल्लाह के रसूल के साथ में थे, उन सहाबा से, उस घर के मालिक से मुलाकात होती है। वो अंसारी सहाबी उनको जब मिलते हैं तो वो सहाबी रसूल जो अल्लाह के नबी के साथ थे कहने लगे, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे मकान को देखा है और तुम्हारे मकान की तारीफ की है, बस ये कहा है कि ये जो गुंबद बना दिया है ये नहीं होना चाहिए। वो सहाबी रसूल कहने लगे, ऐ मजदूरों, शाम का सूरज डूबने से पहले पूरा का पूरा मकान गिरा दो, जमीन के बराबर कर दो। वो सहाबी कहने लगे, नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया कि इस मकान के ऊपर जो गुंबद मस्जिद की तरह जो तुमने गुंबद बनाया है, बस इसी को तोड़ने को बताया। कहने लगे, मुझे समझाओ ना, मुझे नसीहतें ना करो, मुझे पता नहीं मेरे इस मकान पर अल्लाह के नबी ने नफरत की नजर किस ईद पर डाली हो और वो ईद मेरे मकान में लगी रहे। पूरा मकान तुड़वा दिया और दूसरा मकान बनाना शुरू कर दिया और वो ईंटें भी इस्तेमाल नहीं की। ये है मोहब्बत रसूल, ये मोहब्बत रसूल का तकाजा होता है। आज हम अपनी मोहब्बत देख लें। आज हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं और दावा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का है। ये हमें अपने अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करना होगी। एक और सहाबी रसूल है, एक और सहाबी है जे एक मर्तबा वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आते हैं। और से सुनिए इस वाक़े को कि वो सहाबी रसूल आए और उनके हाथ में अल्लाह के नबी ने सोने की अंगूठी देखी। आपने सोने की अंगूठी देखकर फरमाया, ऐ बुरा शख्स, ऐ बुरा शख्स। वो सलाम करता है अल्लाह के नबी को, आपने रुख फेर लिया। वो सलाम दूसरी तरफ लाके करता है, आपने गुस्से की वजह से उस तरफ से भी मुंह फेर लेते हैं। वो तीसरी जगह आता है, आपने फरमाया, तेरे हाथ में जो सोने की अंगूठी है और अल्लाह ने मर्दों पर सोना हराम कर दिया है। वो सहाबी रसूल सोने की अंगूठी पहने थे लेकिन उन्होंने खरीद कर पहनी थी। समझ रहे, वो सहाबी रसूल सोने की अंगूठी जो पहने थे उन्होंने खरीद कर पहनी थी। आज हमारा नौजवान भी पहनता है, लेकिन फर्क है, वो सोने की अंगूठी खरीद कर पहना करते थे। आज हमारा नौजवान भीख मंगनी अंगूठी पहनता है, जो मंगनी के मौके पर या पक्काई क्या बोले कि सगाई के मौके पर सास या साली पहनाती है अपने दामाद को। आज हमारा नौजवान भीख मंगनी अंगूठी पहनता है, उस पर बड़ा गर्व महसूस करता है। भीख मांगकर वो भी सोने की अंगूठी पहन के ला रही है और स्टाइलें भी लोगों ने चेंज कर दी हैं। ससुराल वालों पर बहुत ज्यादा जोर डाल दिया। इस हफ्ते के अंदर बहुत केसेस आए हैं इस जहेज की लानत की वजह से। कितनी बेचारी लड़कियों को तख्तेदार पर लटका दिया गया है। इसी जहेज की वजह से लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन हम मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले मुसलमान जरा अपने गिरबानों में सोच कर देखें, हम अपने लड़कों के नाम पर कितना जहेज लेना बंद करेंगे। हम मोहब्बत रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं और सच्चे आशिक मोहब्बत रसूल है तो अपने बेटों के नाम से जहेज को कितना बंद करेंगे, ये हमारे सामने आ जाएगा। लड़की वालों के यहाँ वलीमा खाना कितने लोग, लड़की के यहाँ तो वलीमा है ही नहीं। कल एक साहब मेरे साथ में थे और थोड़ा उनके सामने गुर्बत की किसी का नाम लेकर किसी को शर्मिंदा करना ठीक नहीं, लेकिन थोड़ा गरीब है, उनके पास निकाह के लिए इंतजाम नहीं हो रहा। तो मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे के पास फोन किया कि लड़के का मामला है, इसमें कुछ मदद करवाएं, कुछ इनके पैसे देकर मदद करें। तो वहां से बहुत अच्छा से हमें जवाब दिया, कल लड़की का वलीमा उसमें कैसे माने, अरे लड़के की तरफ होता भाई मेहर देने के लिए
और उसी तरीके से वलीमा लड़के की तरफ है। लड़के की मदद तो कर सकते लेकिन लड़की का वहां तो इस्लाम के अंदर है ही नहीं, खाना लड़के की तरफ है नहीं, जहेज लड़के की तरफ है नहीं। आप तो पढ़े लिखे होकर मुझसे कह रहे हो, हमने कहा माजरत चाहते, गलती हो गई। तो ये चीजें हमें एक जाहिल इंसान है लेकिन वो दीन के मामले में लगे रहता, उसने बताया कि लड़के की तरफ तो वलीमा है ही नहीं। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। जानते हो आप इस जहेज की लानत की वजह से कितनी लड़कियों को मारा जा रहा है, कितनी लड़कियों को काटा जा रहा है और कितनी वो गरीबों की लड़कियां गलत कोठों पर जाकर बैठ रही है। इसी लानत, इसी जहेज की लानत की वजह से हम जो है समाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी जहेज की लानत की वजह से आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर हजारों में लाखों लड़कियां जवानी की दहलीज को पार कर चुकी है और वो गलत और नाजायज संबंध लोगों से बनाए हुए हैं। इसका मौका देने वाले हम और आप हैं जो अपने बेटों के नाम पर जहेज की डिमांड करते हैं, अपने बेटों के नाम पर हीरो हाना और फोर व्हीलर, टू व्हीलर की डिमांड करते हैं। कल मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि आका, ए नबी, हम तुम्हारे उम्मती हैं और तुम्हारे उम्मती होने के बावजूद ए आका हम अपने बेटों के नाम पर जहेज की डिमांड क्या करते थे? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को शक्ल दिखाओगे? उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं और डाका किसी ने डाल दिया है। आपको मालूम है एक शायर, बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मेर करके मेर, बात ज़हन में आगे आपको बताता चलूं कि मेर करके मेर एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है और उसकी लड़की के रिश्ते आया करते थे लेकिन इतना उसके पास देने के लिए जहेज का सामान नहीं था। लिस्ट आ जाती लड़कियों के वालों के घर से पूरी, जहेज के अंदर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। गरीब बाप था, शायर था लेकिन इतना जहेज नहीं दे सकता। अब मजबूरी की हालत में एक और रिश्ता आता है, उसने अपना मकान तक गिरवी रख दिया, अपनी पान की एक दुकान थी उसको भी बेच डालता है। लड़की को पता चलता है कि मेरे बाप ने बैंक से लोन लिया है, अकेली लड़की थी, कोई औलाद और नहीं थी। बेटी दिल के अंदर कहने लगती है कि मेरे बाप ने बैंक से लोन लिया है और दुकान तक बेच दी है, मकान को गिरवी रख दिया है। जहेज की डिमांड ज्यादा हो रही थी, वो लड़की अपने बाप को मना करती है, ए अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे ऐसे रहने दीजिए। मेर करके मेर कहता है कि नहीं है बेटी, ए बेटी ये है तो सब तेरे लिए ही। आखिरकार वो दिन आ जाता है, जहेज की डिमांड पूरी कर दी जाती है और उस लड़की का उस रिश्ता आ जाता है। बाराती, शोर और डाकू, खाने और नोचने वाले मेर के घर आ जाते हैं और खाना खाने के बाद लड़की की विदाई का वक्त आता है तो वो लड़की अपने बाप से, अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रही है और खूब रो रही है। हर इंसान समझता है कि लड़की तो विदाई के वक्त वैसे ही रोती है लेकिन यहाँ पर राज कुछ और ही है। आखिरकार जब वो वहां जाते हैं लड़के वालों के घर में और जाने के बाद जब शाम का वक्त होता है, मुंह दिखाई की रस्म चलती रही, औरतें आती रही, देखती रही, चलती रही। आखिरकार जब उस लड़की का मिलन का वक्त आता है और वो लड़का वहां पर जाता है तो अपनी बीवी के करीब में जाकर सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उस लड़की के करीब में वो शोहर लालची दामाद जाता है, वो लड़की कहती है मेरे पास क्या करने आए हो? कहा बेगम ये क्या कर रही हो? कहा मेरे पास से हट जाओ, मेरे पास से चले जाओ, तुमको तो मेरे माल से मोहब्बत है, तुमको तो मेरे जो बाप से जो जहेज मांगा है उससे मोहब्बत है, तुमको मुझसे तो मोहब्बत है नहीं। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो मुझको मांगा होता, तुमने तो मेरे बाप को कंगाल कर दिया है। ये बहसों मुबाहिसा चल रहा, वो कहता है मेरी बीवी ये रात बहसों मुबाहिसे की नहीं हुआ करती, ये रात लड़ाई झगड़े की नहीं हुआ करती। कहने लगी दूर हो जा, तो दरिंदा है, तूने मेरे बाप को कंगाल कर दिया है। ये चीख मार कर जमीन पर गिरती है, अटैक पड़ता है और दम निकल जाता है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। एक लोग जाता है और मीर तकी मीर से कहता है कि ए मीर तकी
को बाहर लाया गया। अब उसके बाप ने जैसे ही अपनी उस प्यारी बेटी को देखा, होश व हवास उड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है? ये मेरी बेटी तो है नहीं, मैंने अपनी बेटी को लाल कपड़ों के अंदर भेजा था, ये सफेद कपड़ा ये मेरी बेटी नहीं है। देखिए होश उड़ जाते हैं, कहने लगा ये मेरी बेटी नहीं। दामाद लालची दामाद से कहता है कि मेरे दामाद, ऐ मेरे लालची दामाद, तूने जहेज के अंदर सब कुछ मांग लिया था, तूने तमाम चीजें मांगी जो उस जमाने में चलती थी। ऐ मेरे लालची शोहर, क्या तूने जो मेरी बेटी पर ये कफन डाला है, ये तूने उस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं लिखा था? जब मैं इतना सब कुछ दे सकता हूँ तो क्या ये कफन नहीं दे सकता? तूने इस कफन के अंदर क्यों मेरी बेटी को लपेटा है? और उसके बाद में आखिरी अशार कहता है, वहीं पर अपनी शायरी को खत्म करता है कि अब आया है ख्याल आराम में जायसना मुरादी में, कफन ही देना भूले थे मसला बेशादी में। मैंने सब कुछ दे दिया, बस कफन ही नहीं दिया था। ऐ मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल कैसे होनी चाहिए? आज हमने तो स्टाइलें भी बदल दी है, आज हमने मांगने की स्टाइलों को भी चेंज कर दिया है। देखा है जब कोई लड़के वालों से रिश्ता सेट करता है और जब आगे बात बढ़ जाती है, बारात जाने पर होती है, तो क्या लड़के के बाप से क्या कहता है कि इतना याद रखना, मेरे मेहमानों की खातिरी में कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे मेहमानों की इज्जत और खातिर अच्छी होनी चाहिए। जानते हो क्या कहना चाहता है? छोटे का नहीं, बड़े का चलेगा, जहेज में एक दो आइटम कम दे देना, लेकिन मेरे मेहमानों की खातिरी में कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेहमान अल्लामा इल्लामी ने इनको डाकू और चोर लिखा है। ये चोर बनकर गए, डाकू बनकर निकल आए, इनको तुम मेहमान कह रहे हो? ये मेहमान है, मेहमान तो नहीं हो सकते, ये चोर है, ये डाकू है, ये मुआशरे के अंदर। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो आज के वो मौलवी हजरात हैं जो 1000-2000 की खातिर अपने निकाह पढ़ाने चले जाते हैं। आज मौलवी लोग अगर चाहे इस बुराई को खत्म कर सकते हैं, अगर वो चाहे सारे मौलवी आपस में ये तय कर लें, सारे मौलवी आपस में अगर ये मशवरा कर लें, हम वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसके अंदर बारात आएगी, जिसके अंदर जहेज दिया जाएगा। तो ये देखिए माशरे से के अंदर से कितनी जल्दी बुराई मिल सकती है। लेकिन नहीं, मदरसा बनाने की कमेटी बहुत जल्द बन जाती है, मदरसा बनाना उसके लिए कमेटी बन जाएगी, मस्जिद बनाने की कमेटी बन जाती है। लेकिन मौलवियों याद रखो, तुमने इसके ऊपर क्यों कमेटी नहीं बनाई? आज अगर हम निकाह पढ़ाने के लिए ना जाएं, कौन निकाह पढ़ाएगा? बगैर निकाह के कोई कर लेगा क्या? बताओ। ये सारी गलती मौलवियों से है। बारात में जाना बोले कि इस्लाम में हराम है, नाजायज है, बाराती लेकर मत जाओ, ये इस्लाम मना कर रहा है। लेकिन फिर निकाह पढ़ाने हम ही जैसे मौलवी पहुंच जाते हैं। अगर सारे मौलवी ये अहद कर लें कि हम वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिसमें चोर और डाकू जाएंगे, जिसमें बारात लेकर जाएंगे, हम वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो देखिए ये माशरे से कितनी जल्द खुराफात खत्म हो जाएगी। मौलाना शाही मुरादाबाद के मौलाना हमजा साहब, उन्होंने अपने बेटे का जो वलीमा किया, जानते हो क्या करवाया? फीके चावल और चटनी खिलाई थी लोगों को। मौलाना तफील अशरफ जो कड़ों में है,